Okay, sir. Good afternoon, everyone. Welcome to the presentation session. First, Megha Raut is presenting. May I request Megha Raut to present. Please share your screen for the presentation and begin. Okay, it's been shared. Make it the landscape mode. उसको rotate करिए. Yeah, that's fine. That's good. Okay, you can start now. Just a minute, sir. Okay. Good morning to everyone. Today I am Megha Raut from CBZ Group is here to present my seminar on the topic amniocentesis. Just have a look. Amniocentesis, amniotic fluid, benefits of amniotic fluid, who is it offered to, procedure, amniocentesis in second trimester and third trimester, what detects, risk factors, conclusion and reference. What is amniocentesis? Amniocentesis is a medical procedure used in prenatal diagnosis of chromosomal abnormalities, fetal infections, and also used for gender determination. What is amniotic fluid? Amniotic fluid is the fluid that surrounds and protects a baby during pregnancy. It is a clear, pale yellow fluid made by the fetus. This fluid contains fetal cells and various chemicals produced by the baby. Benefits of amniotic fluid to protect fetus from outside environmental injuries, regulates temperature, allow easier fetal movement, and skeletal and muscular development. WHO, that is World Health Organization, is it offered to mother is 35 or older on the baby's due date, a woman with positive screening test result, other tests such as ultrasound scan later in pregnancy
or one of your blood tests, that is AFP. The AFP means alpha fetoprotein or triple or quad screen test. Couple has a family history of genetic problems. Mother had 3 or more miscarriages. Mother has Rh negative blood and the baby's father has Rh positive blood. Procedure. Under the guidance of ultrasound, a sterile needle is inserted through the abdominal wall into the amniotic sac. A small amount of amniotic fluid is withdrawn to the needle. The amniotic fluid contains fetal cell, which is separated from the amniotic fluid and cultured. Tests are then performed on the cultural cells, that is chemical analysis, DNA analysis, chromosomal analysis. Amniocentesis in second trimester. Women over 35 years old, previous child or pregnancy with birth defect, family history of genetic disorders, have an abnormal ultrasound, risks of neural tube defects such as spina bifida. Amniocentesis in third trimester to determine maturity of fetal lungs, to diagnose a uterine infection, to check for anemia in baby with Rh incompatibility, evaluate baby's status for infection or other illness. What detects? Chromosomal disorders like Down syndrome, genetic disorders like cystic fibrosis and sickle cell disease, muscular dystrophy, sex chromosomal abnormalities like Turner syndrome and Klinefelter syndrome, neural tube defect, spina bifida. Amniocentesis usually tell you whether a fetus has disease or not. Then what are the risk factors? Bleeding or leaking of amniotic fluid from the puncture site, lower abdominal cramping, risks of infection through skin and sac rupture, miscarriage, preterm labor. Conclusion. Amniocentesis is nothing but the diagnostic genetic testing offered to pregnant women with a higher risk of having a child with genetic abnormalities and those with positive screening tests. Purpose diagnose genetic disorders and neural tube defects, including Down syndrome, sickle cell, spina bifida, cystic fibrosis. Procedure is very simple. Consists of withdrawing a small sample of amniotic fluid from the uterus with a long, thin needle guided by ultrasound. It takes 45 to 60 minutes. Risks and complication. Through generally safe, it is an invasive procedure, possible but rare risks and complications including miscarriage, amniotic fluid leakage, infection, injury to the baby. Results can take from 3 days to up to 4 weeks. Positive results are 98 to 99% effective for test condition. Reference, I refer to Scott F. Gilbert and some NCBI websites. Slide share. Thank you. Done, sir. Okay. Remember one thing, whenever you try presenting yourself, put your video on. Okay. Okay, sir. Because it gets into the spotlight type of mode of a presentation. So your full presentation will be on the screen and you will be in the PIP, like picture in picture, in a smaller version. So keep on putting your videos on so that your presentation, who is presenting, we would come to know. Okay. Now, who is the next? So me, Rashmi Ganvir. Okay. Start with your presentation.
Screen is visible or not? No, not visible. Earlier it was visible. Now you have put it off. तो बैकग्राउंड आवाज आ रही है बहुत. अच्छा, मैं बंद कर देता हूँ बैकग्राउंड आवाज का. आप पहले सेट कर लीजिए. सर अभी दिख रहा है? सर दिख रहा है? दिख रहा है. Yes, it's visible. You can start. Okay. One minute, sir. Okay. So my name is Prashik Ganvir from BCZ Group, and my topic of this today's seminar is sperm bank. Okay. So I will start from my topic. So first from intro, I will suggest you means I will tell you about two names. Means sperm bank. What it means? Sperm means what? It's a male reproductive cell, or which is a gamete. And a bank. Bank is locally we know like a money bank where we just deposit some money and we take out when we need. So like that, in sperm we can store our sperm, and whenever we need or any other person needs, so at that time they can take from it. So I start from it now. So one sec. Okay. So now it's visible, I hope, right? Yes, it's visible. I continue. So what we are going through this seminar, we discuss first. We will discuss about sperm bank in brief and history about sperm bank. Second thing, why sperm bank we need. Means sperm bank, why we need this in society, why we actually need it. And after that, in what happens in that sperm bank when we give the sperm, what they do, means all the procedure we will look out of there. So also we know the benefits and some problems of the sperm bank. After that, a sperm bank. Sperm bank, or we can also call as a semen bank, is a facility or enterprise which purchases, stores, sells, or a human semen. So actually, we donate sperm, but they want only semen from that. Okay, we have to understand this. So second point, sperm bank also called as a sperm cryopreservation. What it means? Cryopreservation means it's like a they take our sperm, okay, then they cool it and store. So the process of cooling and storing the cells, tissue, or any organ, so it called as a cryopreservation process. So in this same process, they also store our sperm for longer time. So we will go for history. It's just for understanding. It's not any important, but we just go through it. Like in 1866, first bank for the frozen human semen just suggested, not developed, just suggested. And after 1949, glycerol first used as a preservative agent. Preservative agent means you have to freeze that down for the longer period of time. So that's why we need some substance. So firstly, they use a glycerol. That is in 1949. After that, 1953, dry ice distribution method developed by the Bunch and Sherman. Okay, first successful human pregnancies using the frozen sperm from insemination is also done in 1953 by the Bunch and Sherman. Okay, at that time, semen was stored in the liquid nitrogen at minus 196.5 degrees Celsius. In 1960, sperm frozen and stored using liquid nitrogen. They use liquid nitrogen. In 1972, first commercial sperm bank founded. In 1972, we can say the first commercial bank was founded. And in 1973, normal child born from the semen stored for 1 year. Over 1 year. It means any sperm is stored for over 1 year, and that sperm is utilized for the birth of a child. So it's done in 1973. So the main question is that why we need this in our society? Why the sperm bank is needed? There are so many factors, but there are three major factors why we need this. So we will look out for the three major factors that first, male factor infertility. Male factor infertility means male
In the male, the sperm comes from the male body, as we know this. So if the is male body is unable to produce the sperm, or is unable to produce the fertile sperm, if they are so that process, in that situation, they can't reproduce. So for the descendant, means for the parenthood, they want to be a parent, so they take a help of sperm bank. They go in a bank, they take a sperm and the growth. So we will look out for the male fertility. Why the male fertility process starts? Because of the illness, because of cancer, because of hormonal disorder, injury. So many factors are there. Due to that, male can be infertile. Okay. And after unsuccessful treatment, अगर हम treatment करने के बाद भी unsuccessful हो जाते हैं, so that's why they go male body goes toward the sperm bank for the future. Okay. Second main factor is homosexual couples. So that's also a factor. The homosexual couples also, they need a sperm bank to their parenthood. They want, if they want to become a parent, so they require sperm bank. Okay. So my question is here that can last line of this page, can homosexual male donate sperm? So we can say the answer is almost only 10%. Only 10% homosexual male can donate only, because they also the sperm bank required any sperm which we can be a healthy sperm. बट इन होमोसेक्सुअल मेल उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इस कारण वो डोनेट नहीं कर सकते. बट कुछ रेयर नहीं, बट कुछ 10% ही लोग हैं जो डोनेट कर सकते हैं अगर वो हेल्दी रहा उनका स्पर्म. तो द आंसर इज यस, बट वेरी फ्यू. एंड थर्ड पार्ट इज important, that is female single parent. If any female which is a single parent mother, mostly single parent mother, so for their for their wish, a single parent who wish to have a child without a partner, they also prefer the sperm bank. So these are the three main factors. Because these are the three main factors, that's why we needed the sperm bank. Now, what actually happened in a sperm bank? What they do when we donate the sperm? What they do? Okay, there are three main steps we can say, like a first screening, then they process on it, then storage. That's some types. Sorry, there's some steps they do in the sperm bank. Okay, so we will go for the screening first. Screening means what? स्क्रीनिंग मतलब जो हम स्पर्म उनको दे रहे हैं, स्पर्म वो हेल्दी है या नहीं, वो उनके क्राइटेरिया में बैठ रहा है या नहीं. They will look for that. It's called as a screening. So I just read out, you just look out there. Sperm bank typically sperm potential donor for a range of diseases and disorder that may be transported to the sperm. ऐसा हो सकता है कि हमारे स्पर्म से, हमारे में अगर कोई डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो स्पर्म से ट्रांसफर होता है किसी और चीज में. दैट्स व्हाई दे नीड टू बी स्क्रीन आवर स्पर्म. So what they do actually, अगर उस चीज के लिए वो क्या करते हैं, हमारा स्पर्म लेते हैं. So what they do actually, they take our sperm and preserve the sperm for the at least 6 month quarantine. And what they do in 6 months, they just monitoring and processing that sperm. And after 6 months, if the sperm is healthy and ready to fertile any other egg, then only it can use for other processes as well as treatment. If the result is negative, then only they can use. But if the result is positive, it means the sperm is not healthy. So they will not use, they will reject the sperm. So at least we have to store our sperm for the 6 months in the bank. As I think that I'm going to donate sperm today. So after a week or after a month, another person will take that sperm and do other things. But it's not like that. They think they have to keep the sperm for at least 6 months. So like what this screened means, वो क्या देखते हैं स्पर्म में. फर्स्ट तो उनमें बहुत सारे जो डिजीज है वो नहीं होने चाहिए. कौन सी डिजीज मैंने रेड इससे हाईलाइट किया, लाइक HIV, ह्यूमन टी सेल्स, हाइपोपोटोमोसिस, हाइपोट्रोपिक, सिफिलिस, गोनोरिया, ट्राइपोसोमा, मलेरिया, ये सब हो गया हेरिडिटरी डिजीज. ओके, सॉरी, ये जो थे वो डिजीज है लाइक STDs थे ये. और अभी हम देखेंगे हेरिडिटरी डिजीज लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कोनोजेनियल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया. जो ये टर्म है ना, कोनोजेनियल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, इसमें क्या होता है, किसी बॉडी जो होती है, कोई इंसान है मेल और फीमेल, उसकी ग्रोथ रुक जाती है. So the growth can be stunted over there.
in that process we can get congenital adrenal hyperplasia. And last is karyotyping 46XY, in which the body is female. Okay, in the karyotyping 46XY में क्या होता है कि बॉडी फीमेल होती है बट उनमें फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स नहीं होते. ओके, और ये बहुत रेयर केस है, मीन्स 1 in a million. दिस केस इज 1 in a million. ओके, एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इज ऑल्सो दैट कि हम जो स्पर्म दे रहे हैं वो हमारा स्पर्म मूवमेंट करना चाहिए. कब? हम अगर उसको फ्रीज करके रखते, कूल करके रखते, उसके बाद भी उसको मूवमेंट करना चाहिए. अगर वो होता है तो इट कैन बी यूज फॉर फर्दर प्रोसेस. अगर वो नहीं होता, मूवमेंट नहीं करता तो फ्रीजिंग के बाद, उसका कोई मतलब नहीं. तो एक प्रोसीजर है स्क्रीनिंग में, ये कुछ 6 फैक्टर्स वो देखते हैं. लाइक एज क्या होनी चाहिए. अगर मैं स्पर्म डोनेट करने जा रहा हूँ तो मेरी एज क्या होनी चाहिए. वो एज देखते हैं 18 to 34. 34 से ज्यादा वो देखते नहीं, ज्यादातर 18 to 34. फिजिकल एग्जाम लेते हैं. फिजिकल एग्जाम में क्या, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हाइट एंड हाइट के साथ साथ मेरा कलर का भी देखेंगे. किसी किसी को गोरे होना, काले होना, लाइक दैट. सीमेन टेस्टिंग मैंने बताया. सीमेन टेस्टिंग लाइक हमारे सीमेन में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वो सब. जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग में ब्लड टेस्ट आता है, यूरिन टेस्ट आता है, वो एक जेनेटिक हो गया. फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, उसमें क्या जो हमारी मेडिकल हिस्ट्री है वो भी चेकआउट करते हैं. लाइक हेरिडिटी कोई डिजीज नहीं होना चाहिए. और लास्ट फैक्टर है साइकोलॉजिकल. ये बहुत एक डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है कि वो ये भी देखते हैं कि तुम्हें, मतलब अगर मैं स्पर्म डोनेट कर रहा हूँ तो वो देखेंगे कि मुझे कोई इंटरेस्ट है कि मेरा स्पर्म कहाँ जा रहा है, मेरे स्पर्म से कौन बर्थ ले रहा है, क्या ये मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं जानना चाहता हूँ. तो वो भी एक फैक्टर है. तो नाउ द इम्पोर्टेंट इज लाइक मैंने स्क्रीनिंग कर लिया, वो देख लिया इस स्पर्म में ये है. उसके बाद आएगा कलेक्शन. अब वो कलेक्ट करना है. तो कलेक्शन इज अ नॉर्मल प्रोसेस है. और स्पर्म डोनर जनरल प्रोसीजर एंड कलेक्ट द स्पर्म एट अ स्पर्म बैंक. उनको एक बॉक्स दिया जाता है इन विच दे डू सो. उस एक रूम में जाके वो कलेक्ट करते हैं. तो उनके अलग अलग नाम है उस रूम के, अलग अलग कंट्री के हिसाब से. तो यहाँ पे भी 2 टाइप की तरह से हम स्पर्म डोनेट कर सकते हैं या हम स्पर्म डोनेट कर सकते हैं. एक होता है नेचुरली ड्यूरिंग इंटरकोर्स विद अ फीमेल पार्टनर और अ मेल विद अ फीमेल पार्टनर ड्यूरिंग इंटरकोर्स वी कैन डायरेक्टली स्टोर दैट स्पर्म. और सेकंड वे लाइक हम कोई रूम में जाके डोनेट निकाल रिलीज कर सकते हैं. दैट प्रोसेस. And after that, the important factor is processing. What they actually do when we screen in, when we collect the sperm. अब वो करते क्या अपने लैब में, वो sperm bank में रख के करते क्या है. Sperm banks are clinic usually wash the sperm sample to extract sperm from the rest of the material in the semen. एक्चुअली स्पर्म में जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सीमेन. उनको सीमेन से मतलब है, स्पर्म से नहीं. आई होप यू सी दैट. ओके, तो उनको मतलब होता है सीमेन से. ओके, not sperm, not whole sperm. Okay, so first they wash the sperm and accept the semen, they release out, and the semen is important. Okay, third line, cryoprotectant semen extender is added if the sperm is to be placed in a frozen storage. ये क्या होता है cryoprotectant semen extender? cryoprotectant एक ऐसा मटेरियल है जो फिश के स्केल्स पर भी होता है. क्यों? क्योंकि फिश एक ठंडी जगह पे होता है. तो इसका ऐसा है कि ये ठंडी जगह पे हम कोई भी चीज को ज्यादा देर स्टोर कर सकते हैं और वो खराब नहीं होता ये क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज करने के बाद. ओके, तो ये यही चीज स्पर्म में भी डालते हैं क्योंकि वो स्पर्म हम फ्रीज करके रखते हैं एक्चुअली. तो वो खराब नहीं होना चाहिए लॉन्गर पीरियड. ये तो मैंने एटलीस्ट 6 महीना बोला, हो सकता है 2 साल भी रहे. बहुत कम टाइम, ज्यादा रखते भी नहीं वो लोग, बट रखना पड़ता है. तो फिर वो क्रायो प्रोटेक्टेंट सीमेन एक्सटेंडर यूज करते हैं जिससे वो स्पर्म का लॉन्ग लाइफ चल सके. ओके, अब इसमें भी हमारे जो प्रोसेस है उसमें लिखा है सेकंड पॉइंट, unwashed sample are used for intercervical insemination treatment. Okay, and washed sample are used in interuterine insemination, that is IUI, and for in vitro fertilization. अब ये क्या चीज है शॉर्ट में? ICI, intercervical insemination, in which you can use sperm and directly put without means indirectly we can say, not directly. Okay, indirectly with the needle you can put sperm into the near to the cervix of the vagina of female body. So that we call as a ICI technique. तो इस ICI टेक्निक मोस्टली हम घर में भी कर सकते हैं. तो इन दैट प्रोसेस वी डोंट नीड टू वॉश इट, हम अनवॉश्ड भी यूज कर सकते हैं. बट इन यूटेराइन इंसेमिनेशन ज्यादातर क्लिनिक्स में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है. इनमें भी सेम प्रोसेस होती है, बस उसको पहले वॉश करते हैं. वॉश करने के बाद उसको सर्विस तक नहीं छोड़ते, वो यूटेराइन तक उसको नीडल से यूटेराइन तक पंप को वहां तक लेके जाते हैं यूटेरस तक. एंड देन आफ्टर द अदर प्रोसेस. एंड सेम इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन.
So in this page you can see the last figure. इस फिगर में दिखा रहा है कि हमने स्पर्म दे दिया स्पर्म बैंक में, उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको एक ट्यूब में या हम कोई क्रायो पेपर मैंने बताया उसमें वो सेफ प्रिजर्व करके रखते हैं, एंड वेन एवर दे नीड artificially if any female wants to put artificially, so they can go through it. तो इन ओके स्टोरेज, अब ये स्टोर इसमें भी नीचे भी एक फिगर है, फिगर में भी सेम चीज है कि पहले हमने स्पर्म कलेक्ट किया, आफ्टर दैट उसको लेबोरेटरी में उन्होंने प्रोसेस किया, उसमें से जो काम का है वो निकाल, जो काम का है वही रखा एंड ऑल दैट, एंड बाद में इंसेमिनेशन किया नीडल से। अब ये जो इंसेमिनेशन यहाँ दिख रहा है मेरे को, तो मुझे पूरा यूटेरस तक जाते हुए दिख रहा है, तो ये मेरा होगा IUI। ओके, so sperm freezing and storage is the process whereby sperm cells are frozen to preserve them for the future use. So last point लिखा है frozen semen can be stored for as long as 50 years. इनका कहना है कि हम frozen semen जो हम रखते हैं वो 50 years तक रख सकते हैं। ओके, और 50 years तक रखना है तो उसको हमको प्रोटेक्ट करके भी रखना है। So that's why we need some cryoprotein extender. So the sperm is stored in a small vials between 0.4 to 1 ml of sperm preserved in liquid nitrogen tank. Liquid nitrogen tank में ये लोग preserve करके रखते हैं। So now at the conclusion we are going through benefits and some problems. इसके benefits ज़्यादा benefits है और problem कम है। Problem तो वो problem अगर होते तो अगर problem होते तो इस sperm bank चलता है, लेकिन problem है but कम है। So like sperm donation helps to infertile couples. Yes, मैंने बताया था infertile couples के लिए बहुत अच्छा है, single women के लिए अच्छा है, to build their own biological and the genetic families. Most frozen sperm will decrease mortality. क्या लिखा है? Most frozen sperm will decrease mortality. अगर मैंने sperm को बहुत ज़्यादा देर तक रख दिया तो उसकी mortality means the movement of the sperm reduces. So fertility problem or illness will affect the sperm quality. These are the some problems. So I just tell you something of like अभी हाल ही में हुआ ऐसा है कि एक केस हुआ है केस थैंक यू फर्स्ट आई फिनिश दिस सेमिनार एंड जस्ट वन आई हैव टू कंक्लूड दिस फ्रॉम दिस सेंटेंस। ओके, हुआ ऐसा है कि एक आदमी था जो मर गया, तो अभी कोर्ट में ऐसा है कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसका जो स्पर्म है, उसका स्पर्म जो रहेगा वो उसके वाइफ का उस पर ये रहेगा, हक रहेगा उसकी वाइफ पर, और किसी का भी उस पर हक नहीं रहेगा। ये अभी फिलहाल 1-2 दिन की बात है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये इशू किया है कि अगर कोई भी मर जाता है तो उसकी जो विधवा पत्नी होती है उसका हक होता है उसकी स्पर्म। थैंक यू। Okay, Prashik, right? यस सर। Hello. Yes, sir. Okay, it was a mature presentation, and I would like to discuss few things. Yes, sir. जैसे कि पहले मेगा राउत के प्रेजेंटेशन पे हम बात करते हैं, एमिनो सिंथेसिस के बारे में बताया था मेगा ने। मेगा, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, तो मेगा ये बताइए मुझे एमिनो सिंथेसिस की जरूरत क्यों थी या क्यों है? सर, जो फीटस रहता है उसमें एबनॉर्मेलिटीज रहती है, डिसऑर्डर्स रहते हैं, हमें उससे ये पता चलता है। मतलब बाकी सबको ऐसा लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि उससे सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन ही होता है, पर उससे हमें डिजीज और डिफेक्ट्स भी पता चलते हैं चाइल्ड में। If at all the defects are not disease, मत बोलना शुरू करो, चेंज करो बोलना। डिजीज आपको क्या मलेरिया हो गया तो क्या डिटेक्ट हो जाएगा उसमें? नहीं, ये चीजें होती है सिंड्रोम्स जो होते हैं जो जेनेटिकल हो सकते हैं, विच और जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं, ये डिफेक्ट्स जो हैं और ये जो सिंड्रोम है वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं on the basis of some genetic analysis. Amniocentesis is a fluid which contains the few germinal cells and the few जिसे हम बोलते हैं स्टेम सेल्स भी होते हैं उनमें। तो ये जो सेल्स को हम जब डिटेक्ट करते हैं तो उसके जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करके फिर वो हम जेनेटिकल सिंड्रोम्स कोई हो तो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। डिजीज नहीं बोलना। डिजीज मतलब जैसे होता है कि भाई हम टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, ये डिजीज हो गया। लेकिन अभी आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, आप लोगों ने इसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करना चाहिए
सिंड्रोम्स हैं जो कि जेनेटिकली मैन्यूअर किए जाते हैं, दे आर जेनेटिकली हैंडल्ड, सो द सिंड्रोम्स कैन नॉट बी, मैंने आप लोगों को बताया था, सिंड्रोम इज अ सिचुएशन इन which is an irreversible situation, एक नॉर्मलिटी से एबनॉर्मल कंडीशन में जाना, एंड you cannot come back to the normal condition, that is a syndrome, वो irreversible condition है. एंड डिसीज जो है नॉर्मल से एबनॉर्मल में जाना, एंड एबनॉर्मल से वापस नॉर्मल हो सकते हैं under the influence of drugs, medication, care. So you need to, मतलब ये आप लोग बोलना बंद करिए डिजीज में. कंजेनाइटल डिफेक्ट्स बोल सकते हैं. कंजेनाइटल डिफेक्ट्स मतलब जब एक फीटस डेवलप होता रहता है तब किसी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या फिर कोई डुप्लीकेटिंग सेल में कुछ डिफेक्ट आया, या फेट मैप में, या फिर कहना चाहिए कोई सेल जो डेस्टाइंड है कि क्या बनना चाहिए उसमें प्रॉपर डिवीजन नहीं हुआ, तो वो ऑर्गन या फिर वो पोर्शन या फिर वो टिश्यू में फॉल्ट्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिसीज, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स. जैसे ये क्लेफ्ट लिप्स होते हैं, यहाँ पे ये कटा हुआ रहता है, जुड़ता नहीं है ना. उसके बाद ऐसे बहुत सारे कंजेनाइटल हैं जिसमें हाथ जो है ढंग से ग्रो नहीं कर पाते हैं, एज पर द बॉडी प्रोपोर्शन ग्रो नहीं करता है, तो ये आर्म पोर्शन छोटे ही रह जाते हैं. बाकी ये जो शोल्डर से लेकर एल्बो तक का नॉर्मल ग्रो करेगा, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे. किसी में ये 1 2 3 डिजिट्स होते हैं तो 4 डिजिट्स होते हैं. डिजिट्स नॉट फैरेंजेस. फैरेंजेस होते हैं, डिजिट्स जो होते हैं वो डिजिट्स कभी कभी 3 से ज्यादा होते हैं. तो ये जो डिफेक्ट्स हैं ये जेनेटिकल और कंजेनाइटल हो सकते हैं. These defects can be detected by analyzing the amniotic fluid and the cells in them. Okay, Megha? Yes, sir. Okay, now we're coming to Prashik's presentation. Prashik, आपने जो अभी sperm bank का जो presentation दिया है, it was good. It's a mature presentation. Everybody should take it as a mature student. अभी आप लोग बड़े हो चुके हैं, तो mature student जैसे ही mature person जैसे उसको हैंडल करना है. The one thing which you have used, like जैसे storing करने का आपने कोई history बताई थी. Earlier they have started storing in glycerol, then they shifted on to dry ice. What is dry ice? Prashik? Yes, sir. What is dry ice? सर ड्राई आइस मींस सर हम फिश को भी हम प्रिजर्व करके रखते तो उसमें भी हम कुछ यूज करते जो आइस. तो what is that? What is it called? What is it exactly? Dry ice हम जिसको बोलते हैं वो होता क्या है? मतलब अच्छा वो मतलब वो ड्राई क्या है? हाँ सर वो सॉलिड जैसा मतलब आइस, अगर हम पनीर के टुकड़े लेते तो वो एक सॉलिड है, तो वैसे ही सर वो एक रहता है ना डेंस. आइस तो सॉलिड ही रहता है. नहीं सर, मतलब अगर हम आइस को देखेंगे तो वो थोड़ा लिक्विड भी रहता है, मतलब हाथ लगाओ तो लिक्विड हो जाता है, वो उतनी जल्दी लिक्विड नहीं होता वो जो वाला आइस. एक्चुअली हाँ, you haven't gone through it. ड्राई आइस हम सॉलिडिफाइड CO2 को बोलते हैं. CO2 को हम जब प्रेशर में, कार्बन डाइऑक्साइड, जब CO2 को हम कंप्रेस करते हैं, हाईली कंप्रेस्ड, इट बिकम्स सॉलिड फ्लेक्स बनते हैं उसके. ये आप लोगों ने किया नहीं है? आई हैव डन इट इन माय लैब. हमारे कैंपस के लैब में हमने किया है. CO2 के सिलेंडर को सामने छोटा सा कंप्रेसिंग बॉटल लगाते हैं एंड वी कीप ऑन रिलीजिंग CO2. तो वो जो बॉटल है उसमें आइस जैसी चीज जमा हो जाती है, सॉलिड, छोटे पार्टिकुलेट फ्लेक्स जैसे आइस पीसेस आ जाते हैं. दैट इज नॉट वाटर, आइस ऑफ वाटर, इट्स आइस फ्लेक्स या फिर फ्रोजन पोर्शन ऑफ CO2. एंड CO2 का जो ड्राई आइस इसलिए कहते हैं, ड्राई आइस में क्या होता है, एनीथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम गैस टू सॉलिड, दैट मींस इट हैज टू गो इनटू लिक्विड फेज एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड फेज. लेकिन ड्राई आइस एक ऐसा है जो अंडर प्रेशर स्ट्रेट अवे वो सॉलिड बन जाता है एंड स्ट्रेट अवे वो सॉलिड से वेपराइज हो जाता है. यानी कि आप ड्राई आइस को बाहर छोड़ देंगे तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, स्ट्रेट अवे उड़ जाएगा. उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं आप लोग केमिकल लैंग्वेज में. ठीक है, तो ड्राई आइस जो है दैट इज प्रेशराइज्ड CO2, सॉलिड CO2. वो बहुत ही स्नो जैसा आप समझते हैं, स्नो यदि कोई कोल्ड प्लेसेस में गया हो तो स्नो मालूम, स्नो बहुत सॉफ्ट, ऐसा ही ये भी रहता है, बट इट इज मेड अप ऑफ CO2. एंड देन लेटर दे शिफ्टेड ऑन टू नाइट्रोजन. नाइट्रोजन को भी हम वही प्रेशराइज करते हैं
इट गेट्स इनटू लिक्विड। लिक्विड के बाद फिर सॉलिड होने के लिए और प्रेशर चाहिए, उतना प्रेशर हम क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड जब बन जाता है नाइट्रोजन, तो उसके टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, द टेम्परेचर ड्रॉप्स अंडर द प्रेशर। ये बॉयल्स लॉ है, गैस लॉ है, जिसमें कि हम प्रेशर को बहुत बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो वो इसलिए -96 पॉइंट समथिंग आपने बताया था। यूजुअली कहते हैं कि -80 के नीचे का टेम्परेचर रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द quality of nitrogen we are using. If it's a pure nitrogen, it goes to 190 something. But if it is contaminated with some other gases, then the temperature is a little higher. But still, it's more than 180 degrees. Not 180, -180 degrees. तो इसमें क्या होता है कि when you put some tissue, live tissue in liquid nitrogen, what exactly happens? Whenever you dip it, it instantly drops the temperature. Room temperature 25 रहा होगा, आपने जैसे liquid nitrogen में उसको dip किया, it instantly, in a fraction of second, it goes to -195 जो आपने बताया था। 195 नहीं भी होगा तो 150 चला जाएगा instantly। यानी एक सेकंड एक नहीं गिरेंगे आप, फट से वो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। अब जैसे आपने इसको बोलते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि फ्रिज में रखना, ठीक है, वो कोल्ड स्टोरेज है। लेकिन हम जब क्रायो बोलते हैं, क्रायो मतलब -20 के नीचे जब हम टेम्परेचर्स को लेके जाते हैं, -20 या -20 के नीचे के टेम्परेचर्स में हम जब डील करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्रायो। क्रायो साइंसेस, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो स्टोरेज और व्हाटएवर। क्रायो वर्ड आया मतलब समझना कि -20 के नीचे की बात हो रही है, -20 और उसके नीचे की टेम्परेचर्स की बात हो रही है। उसके ऊपर के टेम्परेचर्स को हम क्रायो वाली साइंसेस में काउंट नहीं करते। तो क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब लोअर टेम्परेचर बिलो 20, -20, हम उनको प्रिजर्व करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन किसी टिश्यू को आप सडनली इस लो टेम्परेचर पर लाओगे, तो उसको बोलते हैं क्रायो फ्रीजिंग या फिर क्रायो फ्रीजिंग को लो। तो यूजुअली जब हम स्लो जब करेंगे, दो प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस में ये है कि आपने फट से 25 से फेंक देनी -125 पे लेके या 150 पे लेके चले गए। दूसरा एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आप 25 से 20 लाए, 0 लाए, -10 लाए, -20 लाए, ऐसे स्लोली, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में होता है। रेफ्रिजरेटर में आप रखते हैं तो स्लोली उसका टेम्परेचर डाउन होता है, एक झटके में डाउन नहीं होता। इट टेक्स सम टाइम टू गेट टू अटेन दैट टेम्परेचर। तो ये जो स्लो टेम्परेचर रिड्यूसिंग है, उसमें होता ये है कि हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग टिश्यू में, वाटर मॉलिक्यूल्स वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। आप यदि केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपने यदि मान लो पढ़ा होगा, पता नहीं प्रैक्टिकल्स किए नहीं ना लास्ट ईयर, लेकिन एनीवेज यदि प्रैक्टिकल्स किए होते तो आपको शायद क्रिस्टल्स बनाते हैं, आप पीपीटी करवाते हैं, प्रेसिपिटेट करवाते हैं। जब क्रिस्टल्स बनाते हैं तो ग्रेविमेट्रिकली हम क्रिस्टल्स बनाते हैं किसी भी कंपाउंड के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वो क्रिस्टल्स तभी बनेंगे जब आप स्लो इवापोरेशन करेंगे, स्लोली उसमें से लिक्विड जब उड़ाएंगे तब वो जाके क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। तो वही होता है जब आप किसी लिविंग टिश्यू जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि 2/3 तो पानी है हर टिश्यू में, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टलाइज होने लगते हैं, वो पैटर्न में सेट होने लगते हैं। क्रिस्टल जब फॉर्म बनते हैं तो क्रिस्टल जो है टिश्यू को डैमेज करते हैं। हमारी टिश्यू जो है ना, जो टिश्यू जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को वो हार्म करेगा, वो पियर्स कर जाएगा उसको। तो इसमें क्या होगा कि स्लो कूलिंग में बात ये होती है कि क्रिस्टल्स फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और क्रिस्टल्स जो हैं वो हमारे टिश्यू को डैमेज करते हैं, राइट। अब रही बात जो क्रायो फ्रीजिंग में क्या होता है कि आप इंस्टेंटली लो टेम्परेचर पर ले आते हो तो उनको क्रिस्टल्स फॉर्म करने का मौका नहीं मिलता, जस्ट सिंपली वो फ्रोजन हो जाते हैं और सॉलिड बन जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड बन जाता है, बट इट डजंट फॉर्म एनी क्रिस्टल। ओके, तो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे तो टिश्यू डैमेज नहीं होगा। एंड स्पर्म बैंक्स में आपने जो बताया कि स्पर्म्स को क्रायो फ्रीज किया जाता है, इट्स द रीजन कि वो जैसे हैं वैसे फ्रीज हो जाए, फ्रोजन कंडीशन में आ जाए। तो वो फिर जब उसको थॉइंग करते हैं, थॉइंग इंस्टेंटली नहीं करते कि जस्ट आपने निकाला -190 डिग्री से फट से रूम टेम्परेचर पर लाया, नहीं करते। उसको स्लोली उसको टेम्परेचर रेज करना पड़ता है एंड नॉर्मल करना पड़ता है। वो जो स्लो टेम्परेचर रेजिंग है उसको हम बोलते हैं थॉइंग, THAW, थॉइंग।
तो थॉइंग स्लो होता है लेकिन फ्रीजिंग इंस्टेंट होता है. दैट्स व्हाट द क्रायो साइंसेस इज कंप्राइज्ड ऑफ. ओके, तो इस प्रकार से स्पर्म्स को हम स्टोर कर सकते हैं. देयर इज अ मूवी, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी है, एक मूवी है जिसका नाम है डोनर, विकी डोनर. हाँ, वो तो एक विकी डोनर जो है वो हिंदी मूवी, जिसमें ये बताया गया है कि क्या बताया गया उसमें कि जो स्पर्म डोनेशन जो है वो एक टैबू जैसा है हमारी सोसाइटी में, तो उसको टैबू को हटाने के लिए वो मूवी बनाई गई थी. बट देयर इज ए मूवी कॉल्ड डिमोलिशन मैन, एक हॉलीवुड मूवी है डिमोलिशन मैन. उसमें एक फ्यूचरिस्टिक मूवी है ये, मतलब समय के आगे की 2040 या 2050 की मूवी थी वो, 1980s में बनी थी. उसमें ये बताया था, उसमें एक जो क्रायो प्रिजर्वेशन की जो बात है ना, उसमें बहुत बताया गया कि पूरा ह्यूमन बीइंग कैन आल्सो बी क्रायो प्रिजर्व. पूरा ह्यूमन बीइंग, अभी तो हम स्पर्म्स को ही क्रायो प्रिजर्व करते हैं. द फुल ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स यूजुअली आर क्रायो प्रिजर्व, स्मॉलर एनिमल्स, बिकॉज एक ह्यूमन को रखने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड नाइट्रोजन लगता है. हालांकि लिक्विड नाइट्रोजन को प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एक्सपेंसिव चीज नहीं है. इस पे कंप्रेशर चाहिए रहता है, और लिक्विड नाइट्रोजन तो आपको मालूम है कि एनवायरनमेंट में इतना सारा अवेलेबल है. सिंपली हमको लेना है, उसको प्रेशराइज करना है और उसको लिक्विड करना है. और जब नॉर्मल एयर को हम जब प्रेशराइज करते हैं तो उसमें हर एक गैसेस हैं, तो सब अपने अपने प्रेशराइज कंडीशन में अलग अलग लिक्विड गैसेस बनने लगेंगी. एनीवेज, तो वो डिमोलिशन मैन में एक वहां पे एक वर्ड यूज किया है जो हमारे साइंसेस में भी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन. सस्पेंडेड एनिमेशन के बारे में शायद मैंने बोला है या फिर बताया होगा, मालूम नहीं. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सस्पेंडेड एनिमेशन. अच्छा, अभी एक और चीज है जो है, आपने कार्टून मूवीज देखते हैं, आप टॉम एंड जेरी मान लीजिए देखते हैं आप, तो मान लीजिए जेरी के पीछे टॉम दौड़ रहा है, जेरी के पीछे टॉम दौड़ रहा है, तो दिखाते हैं कि सपोज करो कि जेरी किसी एक जगह से नीचे चला गया है, एंड एक बहुत ही हाई क्लिफ है, एक माउंटेन के ऊपर है. तो टॉम को दिखाते हैं कि वो दौड़ते माउंटेन के एज को भी क्रॉस कर हवे में आ गया, और हवे में हमको थोड़ी देर रुका हुआ दिखाते हैं उसको, देन ही ड्रॉप्स डाउन, है ना. ये जो है इसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन. एनिमेशन सस्पेंड हो गया उस समय के लिए. तो वैसे ही हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म को वो सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल देते हैं, यानी कि वो उस फेज में चले जाते हैं कि बस रुक जाते हैं. नीदर दे गेट डिस्ट्रॉयड, मतलब मेटाबॉलिज्म है तो मेटाबॉलिज्म खराब भी नहीं होता, और ना ही वो कुछ और कर पाता है. जो सस्पेंडेड एनिमेशन, मतलब जो टॉम आके अटक गया, हवा में लटक जाता है, उसको बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन. तो वैसे ही हम लिविंग सिस्टम्स को भी सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल सकते हैं. और उस मूवी में ये बताया गया था कि द होल ह्यूमन बॉडी कैन आल्सो बी पुट अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन इन लिक्विड नाइट्रोजन. सॉरी सर, हमारी लाइफ बढ़ेगी इससे. आप फ्रीज हो जाओगे ना, आपकी लाइफ वहीं रुक जाएगी, आपके पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रुक जाती है, यानी आप एज ही नहीं करोगे. जिस स्टेज पे आपको सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया गया था, आप उसी एज पे रहोगे. फिर जब थॉ बैक करेंगे आपको, व्हेन वी थॉ यू बैक, देन फिर आप उसी पोजीशन से फिर से आपका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस शुरू हो जाएंगे, यानी उसी, मतलब आपकी लाइफ रुक जाएंगी, आपकी एजिंग रुक जाएंगी उस स्पॉट पे. इस पर काफी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, मतलब पूरे ह्यूमन को करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज कितना भी कर लो, ह्यूमन का जो है, अभी हाथ ही देख लो तो इतना मोटा है, कम से कम कह लो कि आप 4 इंच का थिकनेस है, तो टू द कोर जाने के लिए भी समय लगता है. तो जितना स्लो करोगे तो फिर उतना ज्यादा क्रिस्टल्स बनने के चांसेस है. इंस्टेंटली भले आप डिप कर दो ह्यूमन को, लेकिन उसके अंदर गर्थ में, जैसे अभी हाथ है, हाथ के मिडिल में जाके उसको, कोर पे जाके उसको ठंडा करना है, तो वो इंस्टेंटली नहीं हो पाता, तो वो स्लोली होता है. तो वो टिश्यूज जिसमें इजीली लिक्विड नाइट्रोजन पर्कुलेट कर सके, ऐसे टिश्यूज को ही वो हम क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं. तो यूजुअली पहले पूरे ह्यूमन की बात नहीं हो रही है आजकल, वो मूवी में दिखाया गया था, बट लेकिन हमारे ऑर्गन्स क्रायो प्रिजर्व किए जाते हैं. तो उसी की शुरुआत हुई थी स्पर्म से. ये देखा जाए तो ह्यूमन से ही शुरू हुआ था. इनफर्टिलिटी वाली एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक तरीका था, एंड इसके पीछे ढेर सारे एथिकल, जब तुम्हारा प्रेजेंटेशन था, योर प्रेजेंटेशन वाज गुड, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उसमें ये भी बताएं
कि कुछ एथिक्स हैं, कुछ मॉरल्स हैं जो कि हम, क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ के साथ डील कर रहे हैं, एंड हम यहाँ कुछ भी हमारा जो मन किए वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. We need to understand those things. That's why these processes, these techniques, they all come under, जैसे कि अभी मेगा ने जो बताया था amino synthesis, वो भी ethical jurisdiction में आता है. You need to follow some ethics. हाँ, हम ऐसे ही किसी कभी किसी से मैच कर रहे हैं, किसी से भी कहीं पे भी कुछ कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते. You need to go through, ये ethics का जो है इश्यू वो ऐसा है कि every institution, every research organization, every government has, the science and technology department has this ethics policy in which उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ. Unless and until आप, तो फिर वो अनएथिकल हो जाता है, जिसको हम एज अ साइंटिफिक रिपोर्ट मानते नहीं है. तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वी नीड टू फॉलो फ्यू एथिक्स. जिस जमाने में ये सब काम होते थे उस जमाने में एथिकल इशू, एथिकल पॉलिसीज क्लियर नहीं थी. बट स्टिल जब ह्यूमन से हम रिलेट करते हैं कभी एक्सपेरिमेंट्स को, तो जैसे क्लोनिंग वाली बात जो है, क्लोनिंग भी एथिकल जुरिसडिक्शन में आता है कि भाई कैसे किया जाता है, किसका क्या रहना चाहिए, किसी भी इंसान का उठा के क्लोन बनाना चाहिए क्या, नहीं. तो ये एथिकल कंट्रोल में आता है, एथिकल जुरिसडिक्शन में आता है ये सब एक्सपेरिमेंट्स, ये सब टेक्निक्स जो है. तो वैसा है, क्रायो प्रिजर्वेशन वाली बात आपको समझ में आ गई. और यदि आप लोगों ने देखा नहीं है, वी डिड नॉट गेट अ चांस टू गो टू आवर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर है, हमारा AIHC सेंटर है, हस्बेंड्री, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री सेंटर है नागपुर में, सेमिनरी हिल्स के ऊपर. हम यूजुअली विजिट करते हैं वो लैब को, अभी तो हम जा नहीं पाए. एनीवेज, तो वहाँ पे यूजुअली ह्यूमंस के ऊपर नहीं है वो एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि ये कैटल को वो ट्रीट करते हैं, कैटल्स के सीमेन को इकट्ठा करते हैं. हाउ डू दे डू इट, वो पूरा प्रोसेस दिखाते हैं. फिर लैब में लाने के बाद, नाउ जैसे तुमने कहा था स्क्रीनिंग, जैसे स्क्रीनिंग मतलब हम स्क्रीन करते हैं डिसऑर्डर्स के लिए, या फिर कोई कंजेनिटल डिफेक्ट्स के लिए, या फिर कोई और चीज हो, कोई कंटामिनेशन के लिए, सब के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, साफ करते हैं. एंड वी नीड टू नो, the more the motile is the sperm, the more it is fertile. It is a indirect guess कि ज्यादा मोटाइल है, बहुत ज्यादा हिलता है, बहुत ज्यादा एक्टिव है स्पर्म, इसका मतलब दैट इज मोर फर्टाइल, मोर वायबल, जिसको यूज किया जा सकता है. तो when जब सीमन इकट्ठा होता है, सीमन में there are other seminal fluids हैं जिसमें sperms are suspended. तो उसमें जब स्क्रीनिंग के टाइम पे हम ये भी देखते हैं कि आपने कहा था कि जो अच्छे हैं, जो काम के, वो रख लेते हैं. व्हाट इज दैट काम के? हाउ डू यू नो दैट? तो ऑन द बेसिस ऑफ मोटालिटी, यानी कि उनकी मोबिलिटी, सॉरी नॉट मोटालिटी, मोबिलिटी के बेसिस पे हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं. सॉरी, फर्टिलिटी के बेसिस पे ना सर ज्यादातर से. तो फर्टिलिटी कैसे पता चलेगी? फर्टिलिटी कैसे पता चलेगी ना? फर्टिलिटी कोई ऐसा इंडिकेशन थोड़ी है. तो इंडिकेशन फर्टिलिटी की ये है कि जब वायबिलिटी या फिर फर्टिलिटी जिसकी अच्छी होंगी, जो सबसे ज्यादा मूव करता हूँ, बहुत ज्यादा एक्टिव, जिसको हम बोलते हैं मोटिलिटी तो बोलते हैं, राइट. तो मोटाइल जो है, सबसे ज्यादा जो एक्टिव है, वो स्पर्म्स को अलग किए जाते हैं. जो स्लगिश हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं, उन सबको सेपरेट कर दिया जाता है. एंड वो सीमेन के साथ में एक्टिव या मोटाइल स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है. छोटे छोटे वायल्स कैपिलरी, जैसे कैपिलरी समझते हैं आप लोग, पतली सी ट्यूब, उसमें वो फिल करते हैं सीमेन को एंड दोनों तरफ से सील कर देते हैं. सील करने के बाद, जैसे एक चीज आपने बताई थी, क्रायो प्रिजर्वेंट. तो समटाइम्स क्या होता है कि जब टिश्यू बहुत छोटा है, तो वो जो क्रायो फ्रीजिंग जो, समटाइम्स इट माइट हार्म द टिश्यू व्हिच वी आर फ्रीजिंग, माइट हार्म. बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू है तो इट माइट हार्म. तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेंट्स डालते हैं. सबसे अच्छा क्रायो प्रिजर्वेंट तो ग्लिसरॉल ही है. आजकल तो वैसे बहुत सारे अलग से, ग्लाइकोल नाम का भी एक है, पॉलीग्लाइकोल्स हैं, उसके डेरिवेटिव्स हैं, ये सब यूज किए जाते हैं टू प्रिजर्व द harm caused by the cryo freezing. Okay, so that way ये किए जाते हैं, छोटे छोटे कैपिलरीज में स्टोर कर देते हैं, दोनों तरफ से सील कर देते हैं एंड देन लिक्विड में डिप करके रख देते हैं. whenever they are needed, फिर वो क्रॉस करते हैं एनिमल्स को. वो आप, you all have missed that because of ऑनलाइन क्लासेस. एनीवेज, यदि कभी आएगा तो हम जरूर विजिट करेंगे. हमने ऑलरेडी बात भी कर ली थी लास्ट ईयर,
बट लेकिन वो रुक गया सर. एनीवेज, सर सो सर एक लास्ट क्वेश्चन था. हाँ कुछ. सर अगर मैंने स्पर्म डोनेट किया और वो स्पर्म से कोई वुमन फर्टाइल होके फिर उसको बेबी हो गया, ओके, तो उस बेबी का मैं बायोलॉजिकल फादर रहूंगा क्या? बायोलॉजिकल फादर का मतलब आप देखिए, बायोलॉजिकल फादर मतलब जो स्पर्म उसमें यूज हुआ है वो बायोलॉजिकल फादर रहता है, लेकिन आप लीगल फादर नहीं होंगे. मैं यही कह रहा हूँ, ये चीजें जो है एथिकल इश्यूज हैं. इसमें एथिक्स में कहा गया है कि दो द डोनर इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, बट ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द लीगल फादर. जो हमारे मेरे राइट सोसाइटी के, you will not have any right on that child because you have donated the, though you are a biological father, but you have got no legal right on that child. जब ऐसे जब एपिसोड्स होते हैं तो इस पे वो बराबर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर्स होते हैं, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल फादर का होना, डिस्क्रिप्शन वो होना जरूरी है डॉक्टर के पास. क्योंकि समटाइम्स देखिए एक ऐसे कि आप बीइंग अ बायोलॉजिकल फादर किसी और को आपने, जैसे विकी जॉन में दिखाया था, तो बच्चे हो गए, लेकिन बच्चा बिकम्स अ क्रिमिनल इन लेटर लाइफ, और उसकी जेनेटिक्स देखी जा रही है कि वो कौन से मदर फादर है. सबने उसको डिसोन कर दिया. अब पता लगाने गया था, उसमें पता चला कि भाई आपसे मैच करता है, आप तो हो नहीं उसके फादर, लीगल फादर हो नहीं. तो फॉर दैट रीजन यदि वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हुआ है तो आपको वो डॉक्टर के पास रिकॉर्ड रहता है, एंड दैट रिकॉर्ड कैन नॉट बी थ्रोन आउट आफ्टर सम टाइम. जैसे कि रिकॉर्ड्स यूजुअली 5, 10, 15 साल के बाद दिए जाते हैं. इस केस में रिकॉर्ड्स लाइफ टाइम रखने पड़ते हैं. तो आजकल वो ऑनलाइन हो गया है, तो वो एक सर्वर्स में स्टोर हो जाता है, बट इट इज नॉट रिवील्ड बिकॉज अंडर द एथिकल पॉलिसी के अंदर ये रिवील नहीं किया जाता, और ना ही आपको ना ही उनको बताया जाता है. Understood? Yes, sir. Thank you. Okay. Now that's all to say about discuss. Now can we move to the next presentation? Who's next? Good afternoon, sir. Mm-hmm. Sir, I Neha Kaninde. Okay, Neha. My topic Begin is with your sickle cell presentation. anemia. Sir, may I Okay, present begin. seminar? Yes, please. Thank you, sir. Is my screen visible? Yes, Neha. Okay. So my name is Neha Kaninde, and so I'm going to present a seminar on sickle cell anemia in guidance of Suresh sir. So these are the topic we are going to cover in future slides. What is sickle cell anemia? Sickle cell anemia is the most common abnormal hemoglobin disease. Sickle cell anemia is a genetic disease characterized by irregular sickle shape of erythrocytes. Erythrocytes of this patient adopt a sickle shape at low oxygen concentration. As you can see in the given diagram over here, the normal blood cell has oval shaped diagram and sickle cell has half moon shaped diagram on the molecular basis of HbS. As we know that HB consists of 2 alpha chain and 2 beta chain. In sickle cell anemia, the hemoglobin has 2 normal alpha chain and 2 abnormal mutant, that is beta chain. This is the sickle cell anemia is the result of single mutation, and it takes place at the 6th position. Instead of glutamic acid, valine is coded. As you can see the diagram over here, in normal cell, the mRNA at the 6th position, as you can see, instead of glutamic acid, valine acid has been produced. So homozygous and heterozygous HbS. Sickle cell anemia is homozygous if caused by inheritance of 2 mutant genes, that is one from each parent, that's code for beta chain. In heterozygous HbS,
only one gene of beta chain is affected with other beta chain is normal. The erythrocytes of heterozygous contain both HbS and HbA and is referred to as a sickle cell trait. The individuals of sickle cell trait leads a normal life in contrast to homozygous sickle cell anemia. Here are some few examples. The trait carrier over here leads a normal life, and the child which has homozygous leads, they die at a very young age. They do not live more than 30 years. This is an diagram over here which tells us that when the RBC leads to an half-leaf shape, how the blood circulation has been affected. Pathogenesis mechanism of sickling of erythrocytes. As you have seen in this diagram, it has been elaborated in this slides how the phenomenon of holy leaf shape affects the blood circulation of RBC in the cell membrane. This diagram over here elaborates in detail how vasoacculation occurs in cell membrane. This is a microscope image of sickle cell anemia, that is hemoglobin. Abnormalities associated with HbS. As we know that it is in chronic hemolytic anemia. This chart over here explains that how sickle cell disease can lead to further dangerous diseases, chronic diseases like towering of skull, pneumonia, heart failure, paralysis, abdominal pain, kidney failure, fibrosis of spleen. These are common symptoms of sickle cell anemia. As you can see in the diagram, treatment and prognosis. Okay, so there is no specific treatment for this except transfusion during crisis. This may result in iron overloaded. Sickle cell disease awaits gene replacement. Many patients with anemia die before the age of 30 years, but the prognosis may live a normal life. References are NCERT biology book, Himalaya publication, and images are from Google. Thank you. Hello. नया हो गया पूरा? Yes, sir. अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छा दिख रहा था, बट आई वुड से कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कुछ प्रेजेंटेशन है, क्योंकि आपका डीएनए बना हुआ था हर स्लाइड पे. एनीवेज, वो आपकी चॉइस है, बट स्टिल व्हेनेवर यू प्रेजेंट सम टॉपिक, तो वो टॉपिक से रिलेटेड रहे अपने पिक्चर का बैकग्राउंड या फिर स्लाइड का बैकग्राउंड, तो दैट लुक्स गुड, है ना. मतलब बहुत रिलेवेंट रहना चाहिए. जैसे कि ब्लड सेल्स को ही यूज किए रहते तुमने बैकग्राउंड में, तो वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट. एनीवेज, ऐसा स्लाइड खराब थे, प्रेजेंटेशन खराब था, दैट वाज गुड. बट अच्छा, मुझे एक बात बतानी है आपको, वो ये कि सिकल सेल के बारे में नेहा आपने जो बताया अभी, आपने सिंपली स्टार्ट किया क्या होता है और क्या है उतना बताया. लेकिन कोई मुझे या आप बताएंगे मुझे ओरिजिन कैसे हुआ, पता कैसे चला, क्या ये बीमारी थी, मतलब आई मीन एक सिंड्रोम था क्या, कैसा सिंड्रोम था, और ये जेनेटिकल है क्योंकि आपने बताया पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, सिंगल म्यूटेशन जो आपने बताया, फ्रेम शिफ्ट भी बोलते हैं उसको और पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं. तो उसमें एक ही आई मीन क्या बोलते हैं उसको, बेस पेयर जो है बदल जाता है. एक बेस पेयर बदल जाने के कारण वो जो कोडॉन जो होता है, कोडॉन का सीक्वेंस बदल जाता है, एंड वंस द कोडॉन बदल गया तो वो किसी और अमीनो एसिड को कोड करने लगता है. दैट्स व्हाई वो एक अमीनो एसिड के बदल जाने के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन के चेन्स कैसे हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं.
हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल स्टिकी हो जाता है, हीमोग्लोबिन खुला होना चाहिए। यस सर, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। हाँ, वो दोनों सब लाइन से जुड़ने लगते हैं एक दूसरे से, जी, है ना? yes, तो sir. वो स्टिकी होने के कारण चिपक जाते हैं। चिपक जाएंगे तो सीधी सी बात है, एक अमीनो एसिड मान लीजिए, सॉरी, एक हीमोग्लोबिन मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो वो चिपक गए साथ में, तो वो सबकी कैपेसिटी जो है कम हो जाती है ऑक्सीजन कैरी करने की, Yes, sir. राइट? और इसीलिए वो सिकलिंग शेप भी सिकलिंग हो जाता है, उनका फॉर्म भी जो है सिकल्ड हो जाता है, हाफ मून शेप, क्रेसेंट शेप हो जाता है। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा आपको, सभी को, सब लोग जिन जिन का होगा तो क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। एनीवेज, आई एम नॉट बॉदर्ड, आप छोड़ो ना छोड़ो, आप रहो मत रहो, क्योंकि आप लोग सीरियस हो नहीं, अभी जब एग्जाम होंगे तभी आप लोगों को सीरियसनेस समझ में आएगी। एनीवेज, तो ये एक ऐसा समय था, there were times when you know if यदि मलेरिया हो गया किसी एक को, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी खराब हो जाती थी, पूरी की पूरी कम्युनिटी मर जाती थी। वो मलेरिया हुआ उसे, वो आदमी तो मर ही जाएगा, बिकॉज देयर वाज नो ड्रग, देयर वाज नथिंग टू कंट्रोल अबाउट। तो ये बेचारे, वो आदमी तो मरेगा, लेकिन उससे जो इन्फेक्शन दूसरों को होता था वो भी मर जाते थे। यानी कि एक समय ऐसा था जब गांव के गांव, कम्युनिटी की कम्युनिटी, पूरी की पूरी जमात जो है मर जाती थी बिकॉज ऑफ मलेरिया। ऐसी ही चीजें हुई। यदि आप लोग को मालूम होगा, पनामा नाम की कंट्री है, कहाँ है मालूम है क्या? नहीं मालूम? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है, मैक्सिको के पास में, मैक्सिको के नीचे। तो पनामा जो है वो एक्चुअली क्या है कि वो जुड़ा हुआ है नॉर्थ और साउथ के। जब ईस्ट साइड से नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड जाना होता है तो उनको पूरा साउथ अमेरिका घूम के जाना पड़ता था। जब इधर से इस तरफ आना है तो पूरा साउथ अमेरिका घूम के आना पड़ता है। तो एक पता लगाया था जब शॉर्टेस्ट पतली सी जगह कहाँ पे है, तो वो था पनामा जो कंट्री में नैरो लैंड एरिया, जिसको हम कट करके कैनाल बना सकते थे। बट उस समय, अब वो दूसरे सिचुएशंस हैं, दूसरे स्टोरी उसके पीछे, वी आर नॉट कंसर्न, हम सिकल के ऊपर आना चाहते हैं। तो वो ऐसा है कि उन दिनों में वो लैंड को कट करके दोनों सीज को जोड़ने की जब बात हुई थी, तो वहां पे लेबरर्स को लेके जाया करते थे अमेरिकन। तो उसमें ब्लैक्स को लाते थे, ब्लैक्स जो कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टिंग स्पीशीज है ह्यूमन की। तो उन सबको, जो स्लेव्स जिनको बना रखे थे, उन सबको लेके जाते थे। वो खुदाई का काम करते थे कि वो उस सी को इस चीज से जोड़ना है, अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ देंगे, तो यहीं से ही शिप्स का आना जाना हो जाएगा। तो वो बहुत साल चला है ये प्रोसेस जो है, वो कैनाल बनने के, पनामा कैनाल तो ऐसे बोलते हैं लोग, कम से कम 2.5 मिलियन या फिर शायद 5 मिलियन ऐसा कुछ, भी इतने लोगों की जान ली है उसने वो कैनाल बनने के लिए। उसमें से तो कम से कम शायद 1.5 मिलियन जाने तो सिर्फ मलेरिया से गई, क्योंकि जंगलों में काम करते थे, क्योंकि वो जंगल एरिया से पता, नैरोस्ट लैंड जो था जिसको कट करना था वो जंगल थे पूरे, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, क्योंकि वो इक्वेटर के नजदीक थे। तो वो बारिश होती थी, गर्मी थी, ह्यूमिड था, तो वहां पे मॉस्किटोज खूब पनपते थे। दैट्स अ फेवरेबल हैबिटेट फॉर मॉस्किटोज। तो वहां मैक्सिमम लोग, मतलब जैसा लोग काम कर रहे हैं एक जगह रात को काम करने के बाद कॉटेजेस में या फिर जहां भी रहते थे, तो वहां किसी एक को मलेरिया हो गया तो फिर लाइन से सब के सब पूरे लेबर्स मर जाते थे। तो ऐसे इसलिए कई बार इस काम को, इस प्रोजेक्ट को बार बार रोकना पड़ा है। लेबर्स नहीं मिलते थे, मर जाते थे लोग, एनकरेज नहीं होते थे कि वहां काम करने जाएंगे। देन स्लोली ना पैमाक्विन, क्लोरोक्विन डिस्कवर हुआ, फिर वो तो ठीक है, बहुत बात की बात है। तो ये तो एक इंसिडेंट है जो हमारे हिस्ट्री में लिखा हुआ है, बट देयर वर टाइम्स बिफोर दैट कि जब भी ऐसे मलेरिया नाम का कोई बीमारी हो गई तो मर जाया करते थे, तो बचने के कोई चांसेस नहीं होते। मलेरिया वाज वेरी कॉमन एट दैट टाइम। कोलेरा बहुत कॉमन था, मलेरिया बहुत कॉमन था, है ना, टाइफाइड बहुत कॉमन था। तो ये सब पैथोजेनिक इन्वेजन्स हैं, और इनके कारण, और ये प्रोटोजोआ इन्वेजन है जो है मलेरिया, क्योंकि प्लाज्मोडियम से हो रहा है, प्लाज्मोडियम पानी में रहता है, एक प्रोटोजोआ। ये तो कहीं भी पनप सकता है, किसी भी मॉस्किटो जब वो लार्वे देंगे तो वो लार्वे के थ्रू उसमें आया, उसके जैसे भी आया, देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो वो सबसे आने के बाद लोग मरते थे। तो ये बहुत पुरानी चीज है, मतलब मलेरिया मतलब बहुत पुरानी बीमारी है। जब ह्यूमन और एनिमल जब साथ में रहने लगे, जैसे कि
सिविलाइजेशन शुरू हुआ, तब की बीमारी है। तो ये क्या है कि जो जहाँ पे कोई भी तरीका नहीं था मॉस्किटो से बचने का, जहाँ पे ट्राइबल रीजन है, जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, तो इन्होंने एक ऐसा अपने आप को इवॉल्व किया। इवॉल्व ऐसा किया कि एक पॉइंट म्यूटेशन के कारण वो जो सिकलिंग होने लगा था, सिकलिंग हो जाने के कारण क्या होता था कि मलेरिया का यदि आप प्लाज्मोडियम का यदि आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वो आरबीसी के अंदर एंटर करके प्रोलिफरेट करते हैं ढेर सारे। आप साइकिल पढ़ेंगे आप इसका प्लाज्मोडियम का, लिवर सेल में जाते हैं, लिवर सेल से निकलते हैं, फिर देन सबके अलग अलग स्टेजेस के नाम है, ठीक है। और ये जब वो ब्लड सेल में आरबीसीज में जब जाते हैं एंड देन दे इरप्ट द आरबीसीज, तो शिवर्स आते हैं अपने को, है ना, शिवर्स आते हैं, बुखार, टेम्परेचर, कपकपी होती है। तो ये जो है, तो नाउ दे हैव थॉट लाइक इट्स एन काइंड ऑफ इवोल्यूशन कि ये जो प्लाज्मोडियम है हमारे आरबीसी में जगह ही ना मिले उसको प्रोलिफरेट करने के लिए, तो ये प्रोलिफरेशन रोकने के लिए, उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार का ये एडाप्टेशन था ह्यूमंस का कि भाई हम अपने आरबीसी को सिकल कर लें, छोटा कर लें, पूरे को नहीं, कुछ को, है ना। और जो नॉर्मल आरबीसी वो तो दौड़ते रहेंगे ब्लड में, लेकिन जो सिकल रहते हैं वो ढंग से दौड़ नहीं पाते, वो यहाँ वहां टकराते हैं, देयर मोशन बिकम स्लगिश, तो दे आर द इजी वन टू गेट इनटू प्लाज्मोडियम के जो चाहे अपने मेरोजॉइड्स और जो भी है उनके, जब वो एंटर करने के लिए वो इजी प्रे है जो सिकल्ड हो गए। लेकिन इजी प्रे होने के साथ साथ क्या है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन पूरा स्टिकी हो चुका है और उसने जगह कम कर दी है, उसके कारण क्या होता है कि वो ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार से somehow they have evolved themselves to control the malaria where they cannot have precautions. तो इस प्रकार से सिकलिंग ऑफ आरबीसीज एक प्रकार का बून था, बून समझ तो एक आशीर्वाद था उन लोगों के लिए। वो एक जो म्यूटेशन हुआ उन ट्राइब्स में, वो ट्राइब्स में होने का क्या हुआ कि वो बचने लगे मलेरिया से मरने से। थोड़ी तकलीफ होती थी, then they used to cope up, इम्यूनिटी का, रेजिस्टिविटी का वो बढ़ जा, ठीक हो जाता है। तो ये एक प्रकार का सिकलिंग जो था वो एक प्रकार का अच्छी चीज थी टू फाइट बैक मलेरिया। लेकिन विद द टाइम हमने क्लोरोक्विन डिस्कवर कर लिया, हमने उसका ड्रग बना लिया। आज मलेरिया हमें आप में किसी को हो जाए तो हम ड्रग्स ले लेंगे, हम बच जाते हैं, वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, राइट। तो ये जो स्प्रेड को हम कंट्रोल ला लिए, ये जो है ये बात अब हमें सिकलिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ट्राइब्स में ये चीजें आ चुकी थी, वो जब यहाँ वहां दुनिया में यहाँ वहां जाने लगे तो उनमें ये चीज कंटिन्यू होने लगी। स्टिल दो वी नाउ एट प्रेजेंट वी डू नॉट नीड दैट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इन आवर बॉडी। सिकलिंग ऑफ आरबीसीज इज नॉट नीडेड नाउ बिकॉज वी हैव ड्रग्स टू कंट्रोल दैट वे। तो जैसे कहना चाहिए सिकलिंग of RBCs was a boon at some time. Now it has become a curse. आज की तारीख में वो परेशानी हो गई है ना। तो अब लेकिन मैं यहाँ पे भी एक बात हमेशा कहता हूँ, आप बच्चों को भी बताता हूँ, if at all आपको कोई मैच, यदि कल को जाके आप शादियां करेंगे, बड़े हो जाएंगे, शादियां होंगी आपकी, यदि आपको कोई पता चलता है कि आपका पार्टनर सिकल्ड है, खासकर फीमेल, तो मेल ने उस फीमेल को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि वो जो सिकलिंग जितना भी परसेंटेज फीमेल में है, जब एक नॉर्मल ह्यूमन के साथ शादी करेंगे, उनके बच्चे जो हैं उनमें सिकलिंग और परसेंटेज वाइज कम हो जाएगा। फिर वो बच्चे फिर नॉर्मल किसी से शादी करेंगे तो उनके बच्चों में परसेंटेज और कम हो जाएगा। एंड स्लोली अ टाइम वुड कम व्हेन सिकलिंग वाली परसेंटेज जो है वो कम होती चली जाएगी। तो दिस इज, ये बात को ध्यान रखेगा, इफ एट ऑल सम मैच कम्स फॉर बॉयज कि वो फीमेल सिकल्ड है, तो उसको उस मैच को रिजेक्ट ना करिए, एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आगे की जनरेशन कम हो जाएंगे। एंड स्लोली ऐसे ही शायद हम ह्यूमंस उसको कॉन्कर कर जाएंगे। शायद जो कभी हमारे लिए अच्छे के लिए था वो आज बुरे स्टेज पे, तो शायद धीरे धीरे ये चीज वाइप आउट हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट कर सकते हैं हम इन चीजों को एक जेनेटिक पूल में।
तो start accepting the people who are sickle. But males में अलग बात है, females में अलग बात है. You all know it. Females में carriers होती हैं, percentage wise वो carry करती हैं, males में भी percentage wise carry करते हैं. लेकिन जब वो normal उससे बस एक है जो sickle है उसके पीछे थोड़ा सा हमारा attention ज्यादा हो जाता है, उसके लिए कुछ precautions ज्यादा हो जाते हैं. But we can lead a life with precautions, with care. एक पार्टनर नॉर्मल है, दूसरा पार्टनर अफेक्टेड है, तो नॉर्मल वाला पार्टनर अफेक्टेड पार्टनर का केयर कर सकता है. एंड वो जो अफेक्टेड है वो भी मान लीजिए परसेंटेज वाइज कम है, तो दे कैन देमसेल्व्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स लाइक दैट. कीप इट अ पॉइंट. ये यू ऑल याद रखिए इस चीज को. कभी लाइफ में ऐसे कोई पोजीशन आई तो रिजेक्ट ना करिएगा, ठीक है. इफ एट ऑल यू आर नॉर्मल एंड समबडी योर पार्टनर द मैच जो आ रहा है वो सिकल है, लेकिन आज हम सिकलिंग को छुपाते हैं, बताते नहीं. दैट्स अ बैड थिंग. बताना चाहिए. ओके. एनीवेज, थैंक यू नेहा. कानिंदे. ओके. नाउ हु इज द नेक्स्ट? मेघा राउत. खत्म हो गया सिर्फ 3 प्रेजेंटेशन. सर बोल ही नहीं रहे बच्चे, बहुत लोग बचे सो रहे हुए होंगे हैं. ना, सब सो जाते हैं, लॉग इन कर जाते हैं और सो जाते हैं. सर वो संस्कृति. आवाज दो. संस्कृति बोल रही है. Yes, हाँ, ओके संस्कृति, स्टार्ट विथ योर प्रेजेंटेशन. yes, sir. Is it visible नो नॉट येट. आने दो, आया नहीं अभी तक. now? नहीं संस्कृति अभी तक आया नहीं, शेयर नहीं हुआ तुम्हारा. 1 minute. Now? नहीं आया अभी तक. 1 minute. शेयर स्क्रीन आया. हाँ सर, 1 minute. शेयर स्क्रीन करिए, विंडो सेलेक्ट करना पड़ता है. क्या शेयर करना है आपको, इसके बाद 1 minute. मोबाइल से कर रहे हैं आप. Yes, sir. हाँ होता है, उसमें तो पूरा का पूरा डिवाइस शेयर जाता है. आ गया आ गया. आ गया. यू कैन स्टार्ट नाउ. Now? Is it visible, sir? हाँ यस, इट्स विजिबल. शुरू करिए आप. Myself, Sanskriti Dharamwali. I am presenting seminar on thalassemia. Now, this is the introductory part. Introduction. Thalassemia is a blood-related disorder. It is an autosomal recessive disorder which forms the abnormal form of hemoglobin. Hemoglobin is the protein molecule that carries the oxygen. The condition was first observed near the Mediterranean Sea among the population. There are 2 types of the thalassemia. This one is a alpha thalassemia. Alpha thalassemia is the result of the changes in the genes for a alpha globin component in a hemoglobin. It includes mutation. When missing or a mutated gene diminishes the production of alpha chain only slightly. 2 missing or mutated genes shows at most mild anemia. 3 missing or mutated genes shows the HbS disease characterized by anemia. 4 missing or mutated genes leads to the Bardet-Hydrops fetalis. This is beta thalassemia. Beta thalassemia is caused by damage or a missing of genes. It reduces the production of hemoglobin. Lack of oxygen in many parts of the body. Beta thalassemia is characterized on a clinical degree of severity. First one, thalassemia major, another intermediate, and third one is a minor. Thalassemia major is also known as polycythemia. It is the most severe form of beta thalassemia. It develops when a beta globin is missing. It results in anemia, erythropoiesis, bone abnormalities, growth restrictions, intense hemolysis, leads to lithiasis, formation of leg ulcer, and pulmonary hypertension. 1 minute. Intermedia.
With age, patients develop bone marrow expansion, bone abnormalities, growth restriction, infertility, and osteoporosis. Thalassemia, a minor, is an asymptomatic condition. It shows mild anemia. It occurs during the childhood, pregnancy, or a situation of a physiological stress. Chronic treatment of the thalassemia, major or intermediate. Moderately severe anemia, and some will need regular blood transfusions and other medical treatment. Blood transfusion deliver healthy hemoglobin and RBCs to the body. Clinical phenotypes associated with a less severe anemia. People with a beta thalassemia major or intermediate usually have a buildup of iron in the body, either from diseases itself or from the repeated blood transfusion. Excess of iron can damage the heart, liver, and endocrine system. Diagnosis and management. Chronic villus sampling. It is done around the 11th week of pregnancy. Amniocentesis. Amniocentesis. It is examining the sample of amniotic fluid in a 16 to 20th week of pregnancy. Frequent blood transfusion. More severe forms of thalassemia require frequent blood transfusion. Chelation therapy is required. It removes the excess iron from the body. Bone marrow transplantation. It eliminates the regular need of the blood transfusion. References: www.healthline.com, Gates Health Organization, and www. Johns Hopkins Medicine. Thank you. Okay, thank you संस्कृति. Sir. Thank you. अभी कौन है दूसरा प्रेजेंट करने वाला? Sir Mukunda Moture. Okay, Mukunda. The screen is visible. Yes, screen is visible. Yeah, you can start. So my name is Mukunda Moture and I'm from CBZ. My topic is applied genetics and the subtopic is DNA fingerprinting. First of all, what is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting is a method used to identify an individual from a sample of DNA by looking at the unique pattern in their DNA. That the gene present on chromosome are responsible for determining characters of an organism as well as for inheritance of DNA. DNA fingerprinting was initially developed by Alex Jeffrey. As no 99.9% of base pair are same in all, and 0.1% is different according to HGP. The 99.9% base pairs are non-coding sequences, and the 0 sequence is the only coding sequence that code for central dogma, formation of proteins and the formation of mRNAs. Here we use the satellite DNA as a probe, which shows very high degree of polymorphism. DNA separated in density gradient centrifugation technique. We take DNA, we take the nucleus, and if we put the DNA in centrifugation, we use that DNA in centrifugation technique. Then there are two major bulk are formed. One is a major that represent the genomic DNA, and the smaller peak. There are two peaks are formed. One represent the genomic DNA, and the which are referred as a satellite DNA. Satellite DNA are classified into many categories on the basis of base composition, that is AT rich or GC rich, length of segment, and the number of repetitive units. The satellites are divided into two classes: the mini satellites and micro satellites. 1 to 6 base pair are considered as a micro satellites, and are considered as a mini satellites. And mini satellites mostly used as a VNTR, which is used in DNA fingerprinting. The steps involved in DNA fingerprinting. The first step is DNA isolation. We take DNA from blood, semen, or hair follicle. Then if the DNA is in small quantity, then we use DNA amplification technique to produce the DNA from the PCR machine, polymerase chain reaction. Then next one is DNA fragmentation.
We cut DNA into small pieces by the help of the station endonuclease enzyme. Next is gel electrophoresis. The DNA sample loaded on agarose gel. This charge is applied where the DNA fragment which are negatively charged move to the positive, and the movement of this fragment depend upon the length of this fragment. This result in the formation of bands. Here these are the fragments move toward the positive pole, and the movement of this fragment are depend upon the length of the fragment. If the fragment is small in size, small in length, then they move faster towards the positive pole, and due to this there is a formation of the next step is southern blotting. The bands are blotted on the nylon membrane. This single stranded DNA get embedded into the nylon membrane. Next step is labeling, hybridization using labeling VNTR probes, and the next one is photography. This nylon membrane is kept in contact with the X-ray film, and the DNA band due to the radioactive probes give us photographic image for documentation. Here we can take example. Here we take here two persons, person A and person B. We take 3 chromosomes from each. Chromosome number 7, chromosome number 2, and chromosome number 16. In red color, in chromosome in person A, we see there are 3 repetitive there are red color repetitive patterns in person A. In first 3 there are 3 pattern, there are 3 repetitive units, and in second chromosome, that means homologous chromosome of first, we see 4 repetitive patterns. Similarly, in individual B, we see there are 11 repetitive patterns, and in homologous chromosome we see there are 9 repetitive patterns. And here is person C. Here is person C. We get in chromosome number 7 there are some repetitive patterns we also see in chromosome number 7 of person C. The person C is a DNA which are taken from the crime scene. And due to this technique, we can easily identify who is a criminal or who is not. As we know, there are C and B are same, so we can conclude that the criminal is B. Thank you, sir. Okay, Mukunda. Why this technique is called fingerprinting when there is no finger involved? So this technique is purely based on DNA, on genetics, so that's why. Why then it is called fingerprinting? Why it is not called DNA printing? Why it is called DNA fingerprinting? The finger तो है ही नहीं, कहीं पे भी involved ही नहीं. ओके, सर रीजन नहीं पता एक्चुअली. हाँ, जैसे हम फिंगर्स के प्रिंट्स लेते हैं ना, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स बहुत यूनिक होते हैं. मेरे फिंगरप्रिंट किसी और से मैच नहीं करेंगे, आपके किसी और से मैच नहीं करेंगे, बराबर है? तो वैसे ही जब हम डीएनए को जो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स के साथ जब हम क्लीव करते हैं, तोड़ते हैं, उनके टुकड़े बनते हैं. वो टुकड़े जो हैं वो हर इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक है. वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब मेरे लिए काम करेंगे तो कुछ और तरीके से ब्रेक करेंगे, आपके लिए काम करेंगे तो कुछ और तरीके से ब्रेक होंगे, अलग टाइप के फ्रैगमेंट्स बनेंगे. जब हम उसको जेल पे रन करते हैं तब हमको समझ में आता है कि इसके पैटर्न अलग आ रहे हैं, इसके बैंड्स अलग आ रहे हैं, क्योंकि टुकड़े अलग हो गए, फ्रैगमेंट्स अलग हो गए, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के फ्रैगमेंट्स बन गए. तो वो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ जाएंगे तो वेट के हिसाब से वो अलग अलग जगह सेटल होंगे. तो वी गेट अ बैंड पैटर्न. तो जो बैंड पैटर्न जो है, बैंडिंग पैटर्न जो कहते हैं, वो हर इंडिविजुअल के लिए सेपरेट है, स्पेसिफिक है, एज इफ लाइक फिंगरप्रिंट्स. इसलिए हम इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग.
हर एक के लिए डिफरेंट है। अभी आपने बी और सी को, बी और उसको किया था, ए और बी को, ए के फिंगर वही डिस्ट्रिक्टिव एंजाइम ऐड किया, लेकिन क्या हुआ देखा आपने, उसके टुकड़े अलग अलग जगह सेटल हुए, क्योंकि रेड वाले छोटे टुकड़े बने थे उसमें, Yes. और बी वाले उसमें दिखाए तो रेड के बड़े टुकड़े बने, जो आपने ऊपर दिखाया है, तो बड़े टुकड़े जो है वो Yes, sir. पीछे सेटल हो गए, और ए के जो छोटे टुकड़े थे वो आगे जाके चले गए, क्योंकि छोटे थे वो। जब हम क्राइम सीन से जब हमने एग्जाम्पल लाया तो उसको फिर वो Yes, दोनों sir. आदमी के उससे मैच किया, तो पता चला कि क्राइम सीन से जो लेके आया था वो दैट इज मैचिंग विद द बी, है ना, मतलब उसके भी बड़े बड़े टुकड़े कटे थे। तो Yes. द क्लीविंग एंड द पैटर्न ऑफ बैंड्स वी गेट from each individual is very much specific for that particular person. जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स भी यूनिक हैं हमारे लिए, तो वैसे ही डीएनए के भी बैंडिंग पैटर्न्स आफ्टर द क्लीवेज वो यूनिक है, इसलिए हम उसको डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ओके, Yes, sir. चलो, थैंक यू। हु इज द नेक्स्ट? Sir, I Shikha Irneshwar from. शिखा। ओके शिखा, स्टार्ट विद योर प्रेजेंटेशन। सर इसको हाँ शिखा आ गया, दिख रहा है प्रेजेंटेशन, शुरू करिए। Okay. So myself Shikha Irneshwar from third sem BCZ. My topic of presentation is phenylketonuria. Phenylketonuria is a genetic metabolic disorder which causes severe brain disease due to toxic level of phenylalanine in blood, urine, tissues, and brain, in which a baby is born without an important enzyme known as phenylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase, which is necessary to break down an amino acid called as a phenylalanine. It is an essential amino acid which is necessary for life, but our bodies cannot make it, so phenylalanine must be acquired from the food that contain proteins. Phenylalanine has its own metabolic pathway which is capable of forming an amino acid, very similar to it, called as a tyrosine, which is a precursor of neurotransmitters. That means chemical messenger that releases neurons from for intercommunications, which is important in brain development and function. Phenylketonuria is autosomal genetic disorder which affects phenylalanine hydroxylase enzyme due to gene mutation. If parents are carrier of mutated PAH gene, if both parents carry faulty copy of phenylalanine hydroxylase gene, the chances of their offspring to have phenylketonuria disease is 1 in 4 or 25%. Transformation of phenylalanine into tyrosine will be interfered due to the fact PAH hasn't been formed correctly and there will be accumulation of phenylalanine. And tyrosine will not synthesize, therefore level of dopamine or norepinephrine in brain falls down and it will affect in synthesis of neurotransmitter. Symptoms of phenylalanine are severe intellectual ability, psychiatric disorders, seizures, metabolic defeat will occur,
and abnormal brain development. Testing methods for the phenylketonuria. There are testing methods for phenylketonuria are: if parents are potentially carrier of phenylketonuria, genetic testing can determine if they have a mutated copy of phenylalanine hydroxylase gene. And during pregnancy, chorionic villus sampling, also called as amniocentesis, can be done to screen fetus phenylketonuria. In chorionic villus sampling, it is a prenatal test in which a sample of chorionic villi is removed from the placenta for testing, and the sample can be taken through cervix or the abdominal wall. Routine newborn screening takes place approx 24 hours after birth, and screening is done with measuring blood from the heel stick to analyze phenylalanine level by simple blood test. In many countries have mandated phenylketonuria testing for neonatals as a part of routine newborn screening program. Management. The first line therapy used for the phenylketonuria is the low phenylalanine diet. It includes lifelong specialized diet, that is medical food, such as low or no phenylalanine formula synthetic form for the protein. All high protein foods are eliminated from the diet, such as egg, fish, and meat, and certain vegetables, fruits, or low protein grains are added to the meal plan. All diets are given with the prescription of dietitians or medical physicians. There are some medications that can help to reduce blood phenylalanine level and increase phenylalanine hydroxylase gene. Outcome of early treatment of children tends to develop normally. If treatment is delayed, it will lead to the brain damage or developmental delay. I have taken the references from the websites www.healthline.com and www.webmd.com, and took references from the book, that is Concept of Genetic by William S. Klug and Michael R. Cumming. Thank you, sir. Okay. PKU. Okay. Thank you. क्या नाम है आपका? Sir Shikha. शिखा. और कोई है देने वाला? यस सर, महिमा शिवारे. Okay, महिमा. अच्छा एक मिनट. प्रशिक है क्या? चला गया. यस सर. प्रशिक तुमने फाइल अपलोड नहीं की है? सर किए थे. नहीं, ब्लैंक फाइल अपलोड की तुमने, ब्लैंक है. अच्छा सर, मैं फिर से कर देता हूँ यहाँ से. हाँ, तो करोगे नहीं तो वैलिडेशन नहीं होगा. यस सर. सर किए थे मे बी. हाँ ठीक है, कर लो फिर से. चलो महिमा. Hello everyone, good afternoon. My name is Mahima Shivare and my topic name is sperm bank. So here is presentation outline. Sperm bank selection criteria for sperm donor, screening of donor, processing and storage, benefit of sperm banking, problems of sperm banking, conclusion and reference. So let us start. What is sperm bank? Since that time, new and improved method of freezing and storing same by facility or enterprises that collect and store human sperm from sperm donor for using by women who need donor provide for to achieve pregnancy. In simple language, sperm banking nothing but the method used to preserve sperm by cooling and storing them in very low temperature. Sperm donated by the sperm donor is known as donor sperm, and the process for introducing the donor into the woman is called artificial insemination
or third party. Insemination, the deposition of semen in the female reproductive tract. The primary recipients of donor sperm are heterosexual, opposite sex, suffering from the male infertility, not getting pregnancy, lesbians couple, and single women. Selection criteria for sperm donor: male of all ethnicity and background, a non-alcoholic and non-smoker, or maintaining a healthy lifestyle. Blood test for blood grouping: RH status, HIV, diabetes, hepatitis B and C, and other sexual transmitted disease. Screening of donor. Donor subjected to test for infectious disease such as human T cells lymphotropic virus, um, uh, uh, hepatitis B virus, and hepatitis C virus. Hereditary disease such as जो genetically disorder होता है, और cystic fibrosis एक genetic disorder है जो that affect mostly lungs and but also pancreas, liver, kidney and intestine, and difficulty in breathing. Sickle cells, we know that caused by red blood cell. Processing and storage. Sperm bank usually wash these samples to extract sperm from the rest of material in seminally fluid. It is secreted by sexual gland. This include a complete seminally fluid alliances, quantity sperm, motile, forward progressing sperm density, and morphologically. All samples are stored in liquid nitrogen gas tank in minus 196 degrees Celsius. Once frozen, the villas are immersed in liquid nitrogen in insert tank at a temperature of minus 196 degrees Celsius and minus 317 फ़ारेनहाइट स्केल है जो फ्रीजिंग पॉइंट चेक करती है वाटर की. Benefits of sperm banking. Sperm that are frozen usually need to be combined with assist representative technology for a good change of having a baby. However, together with assist representative technology treatment, some freezing is the best method for preserving man reproductive potential. Problems with sperm banking. Most versions, some samples with have same decrease in mortality after thawing. Fertility problems are ongoing illness while affect semen quality. It is for the reason that most frozen sperm samples need to be used in combination with IVF, in vitro fertilization, in order to have good change for successful pregnancy at later date. Conclusion. Sperm banking is a time-tested and proven method of preserving male fertility. The produce is likely to be used more as more reproductive technologies continue to advance. The on-site lab of fertility associate of Manfreeze offer sperm and embryo cryopreservation, freezing and storing fertilities. Reference from Google Sites and Chromosome. Thank you. Okay, thank you, Mahima. Who's next now? Sir, can I present? Who's this? Ayushi. Okay, Ayushi. Yes, yes. Yes, sir. One second.
सर एरर आ रहा है, प्रेजेंट नहीं हो पा रही। होना चाहिए, देखो सिटीजन फिर से लॉगिन करो रहे तो। लीव करके ज्वाइन करो फिर से। हम्म। ओके सर। अच्छा महिमा, यस सर। आपका भी प्रेजेंटेशन नहीं है, अपलोड नहीं किया आपने? सर बट मैंने किया था। नहीं दिखा रहा है। ओके सर, मैं अभी कर देती हूँ। कर दीजिए। यस सर। हाँ आयुषी, चेक करो अभी। सर ये ऐसे प्रेजेंट नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू कर सकते हैं? नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की क्या जरूरत है? आप शेयर करेंगे, आपको विंडो पूछता है, विंडो सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। आपको दिखेगा नहीं, हमको दिखता है यहाँ पे। अच्छा, आपको सिर्फ लिखा बट आएगा ये कि शेयर हो गया। अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है, सॉरी ये इसमें तो क्या एरर ही क्या है। बनाया आपने, क्या लिया था? पीडीएफ ही बनाया है WPS ऑफिस से। तो वो आपके डिवाइस की प्रॉब्लम है, डिवाइस में कोई वो सपोर्ट करने के लिए वो नहीं होगा। पीपीटी नहीं बनाया आपने? पीपीटी बनाई थी सर, एक्चुअली मतलब मैंने सेव करके रखी है इसमें पीपीटी, बट वो शो ही नहीं हो रही है उसमें, पीपीटी फॉर्म में ही है। तो पीपीटी तो खुल जाएगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सभी की तो पीपीटीज खुली हैं। ये इससे डायरेक्ट शेयर करके देखते, बट ये ऐप में नहीं ओपन होगा ना फिर एक्चुअली। आपने शेयर स्क्रीन किया नहीं अभी तक? अब हुआ अभी शेयर, अब हो गया। अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है, ओके सर। पीडीएफ भी नजर आ रहा है। ओके सो सब स्टार्ट करते हैं। हाँ, शुरू करिए। Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Myself, Aisha Dhiran. I am here to share some information about thalassemia. So, here, first is what is thalassemia? Thalassemia is an inherited blood disorder in which the body makes an abnormal form of hemoglobin. Hemoglobin, as we all know, is the protein molecule in red blood cells that carries oxygen. In this disorder, in particular, thalassemia, it results in excessive destruction of red blood cells, which leads to anemia. Anemia is a condition in which your body doesn't have enough normal, healthy red blood cells. Thalassemia is inherited, meaning that at least one of your parents is the carrier of this disorder. That means it is genetic. It is caused by either genetic mutation or a deletion of certain key fragments. Some of the symptoms of thalassemia are bone deformities, especially in the face, dark urine, delayed growth and development, excessive tiredness and fatigue, yellow or pale skin. Not everyone has visible symptoms of thalassemia. Signs of the disorder also tend to show up later in childhood or adolescence. What are the major causes of thalassemia? Thalassemia occurs when there is an abnormality or mutation in one of the genes involved in hemoglobin production. You inherit this genetic abnormality from your parents. If only one of your parents is a carrier of thalassemia, you may develop a form of disease known as thalassemia minor. If this occurs, you probably won't have symptoms, but you will be a carrier. Some people with thalassemia minor do develop minor symptoms. If both of your parents are carrier of thalassemia, you have a greater chances of inheriting a more serious form of the disease. Thalassemia is most common trusted source in people from Asia, the Middle East, Africa, Mediterranean Sea,
such as Greece and Turkey. There are three main, now we'll discuss about the types. There are three main types of thalassemia. Beta thalassemia, which includes the subtype major and intermedia. Alpha thalassemia, which include the subtypes hemoglobin H and hydrops fetalis. Thalassemia minor. All of these types and subtypes vary in symptoms and severity. The onset may also vary slightly. Now, diagnosis. If your doctor is trying to diagnose the thalassemia, they're likely to take a blood sample. They'll send the sample to a lab to be tested for anemia and abnormal hemoglobin. As we know, in this disease, there is a destruction of RBC, so it will affect our hemoglobin rate also. A lab technician will also look at the blood under a microscope to see if the red blood cells are oddly shaped. Abnormally shaped red blood cells are a sign of thalassemia. The lab technician will also perform a test known as hemoglobin electrophoresis. This test separates out the different molecule in the red blood cells, allowing them to identify to normal type. Depending upon the type and severity of the thalassemia, a physical examination might also help your doctor to make a diagnosis. For example, a severely enlarged spleen might suggest to your doctor that you have hemoglobin H disease. Treatment. The treatment of thalassemia depends upon the type and severity of the disease involved. Your doctor will give you a course of treatment that will work best for your particular case. Some of the treatment include blood transfusion and bone marrow transplant. Medication and supplements will also help. Now, treatment. Possible surgery to remove the spleen or gallbladder. Your doctor may instruct you not to take vitamins or supplements containing iron. This is especially true if you need blood transfusion because people who receive them accumulate extra iron that the body can't easily get rid of. Iron can build up in tissues which can be potentially fatal. If you are receiving a blood transfusion, you may also need chelation therapy. This generally involves receiving an injection of a chemical that binds with iron and other heavy metal. This helps remove extra iron from your body. And reference was Healthline app, from which I have collected this information. Okay, sir. Done. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. 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 Sir. सुनाई नहीं पड़ रहा? हाँ सर, अब आ गई। अब आ गई सर। आ रही है? यस सर, यस सर। हेलो। यस सर। आयुषी एक बार बात करो तो आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर, अभी आ रही है। अभी बीच में शायद जा रही है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। शायद ये मेरा मेघा कहाँ है अभी? मेघा है सर क्लासरूम में।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ समझ गया, मेरा ये ईयरफोन जो है ना उसकी बैटरी शायद खत्म हो गई। एनीवेज सर अब आ रही है पर। हाँ अभी मैंने हटा दिया ना उसको, बाहर से बात कर रहा हूँ। ये इसको चार्ज कैसे करते हैं, ये इतनी सारी चार्ज करने वाली चीजें हैं। ये इसका है कि नहीं, मेरा कोई और है देखो कि नहीं नहीं है? सर हो गए सब, हो गए सब। इन कई लोगों के सबमिशंस हैं, उन्होंने तो अभी तक किया नहीं है अभी कुछ भी। सर पता नहीं, ग्रुप में मैसेज डाला था बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ठीक है, सोते रहने दीजिए उनको। चलिए एक बार सब लोग, आप लोग ये के रिया है यहाँ पे, रूपल है और मुकुंदा है और जिस महिमा है, बाकी जिसने दे दिया भग गए के सब। प्रतीक सब एक बार वीडियो ऑन करो, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। सर हमारे इधर एक्चुअली बैकग्राउंड में कुछ काम शुरू है तो मैं ऑन नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होता, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ रखो, कुछ नहीं होता। लैंडस्केप में करो बेटा, क्या नाम है, रिया टिल्ट करो। हाँ गुड। मैडम, मेघा मैडम कहाँ हो? सर सभी आपकी आवाज लैंडस्केप में बहुत स्लो है ना, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, सभी लोग माइक ऑन करो। एक दिन बच्चा कौन है, हेड है, ये महिमा बची है। महिमा कहाँ गई? मेघा बची है, महिमा बची है। आप क्या नाम है आपका? ऐसे रोटेट करिए ना, लैंडस्केप में लाइए सब, खड़ी खड़ी फोटोज आती हैं। हाँ ऐसे, यस गुड। रशिक गुड। और कौन है? महिमा बची हुई, महिमा ने ऑन किया था फिर बंद हो गई। और अपनी मॉनिटर तो नहीं है, आयुष भी बंद है। अरे भाई तैयार होने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक स्क्रीनशॉट लेना है। आप लोग कैमरा ऑन करिए, लैंडस्केप। मुकुंदा तुमने पोर्ट्रेट पर रखा है, लैंडस्केप पे लाओ इसको। मुकुंदा यस। महिमा कहाँ गई? महिमा घुमाओ उसको, घुमाओ इसे लैंडस्केप पे ले। यस यस। अपनी मॉनिटर बच गई अपनी। मेघा राउत। हाँ सर अब ठीक है। हाँ ठीक है, तुम दिख तो नहीं रही हो लेकिन। सर मुझे ना आपकी आवाज ही बहुत स्लो आ रही है। अरे कैमरा तो ऑन करो, कैमरा ऑन करो। सर किया ना ऑन। सबको दिख रही है क्या मेघा? हाँ 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 ठीक है, कर दिया कर दिया। अब सर दिख रही है? अब दिख रहे हो? हाँ। चलो फिर थैंक यू करो, हेलो करो। मैं बस स्क्रीनशॉट, फिर बंद हो गई। कौन बंद हो गए? महिमा। हाँ ठीक है, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए थैंक यू वेरी मच। फिर करना रहा तो बताना मुझे, फिर ये जूम की आईडी लेनी पड़ती है। आप लोग जब फिर से कोई और इंटरेस्टेड है देने के लिए तो मैं फिर से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है मेघा? चलिए थैंक यू। थैंक यू सर।